Today, we will be talking about mental health care. Okay, and there are certain aspects to it which are the closer related aspects, which are rights, and then certain legislations. So we'll be talking about all of these in quite detail. Okay, now there are certain aspects that we need to cover today. Okay, uh, but before we start, we will just continue with the regular style. Okay, so let's discuss what are the, let's say, um, the topics that we'll be covering today. So in today's session, we will be covering, or we will be trying to define what is mental health, and then we will be seeing how is it a part of UDHR, which is United Nations Declaration on Human Rights. Then we will try to find out what are the related issues which are connected with mental health. Then the legislations that we have in India which deals with mental health. Okay, and then we will try to see why are the legislations important. And then we have something known as National Mental Health Program, right? So we will be talking about these in detail. Okay, and once we are done with a National Mental Health Program, there is a small issue which is related to Section 309 of IPC, Indian Penal Code. So we'll be talking about all of these in detail. So let's start the session, right? Okay. Now, okay, right. So here is the definition right in front of you, right? So when it comes to WHO, so the basic definition that WHO has provided us of world of mental illnesses, this a state of well-being in which, now this is quite important, it is a state of well-being in which an individual recognizes his or her own abilities and can cope with normal stresses of life and work productively and fruitfully, right? And is able to contribute to his or her community. Now, what are the keywords over here? You will see that any person who is in sound mental health will be having or will be in a good state. Okay, so उसका जो health है वो good state में रहेगा. Now well-being के साथ दो चीजें connected है. Now there are two things connected with it. We are not distinguishing between mental health and general health. So this particular definition is inclusive of general health. अगर आपका general health ठीक नहीं है तो आप well-being आप अच्छा feel नहीं करोगे, right? So general health के साथ included है. So this is quite remarkable in the definition. Apart from this, कुछ और चीजें हैं यहाँ पर जो हमको ध्यान रखनी है. That he or she should be able to cope with stresses of life and work. Okay. So basically एक general sound health के लिए जरूरी है कि आप जो general life में problems आती हैं उनको आप easily face कर पाएं. And then there are three important words which are there. Now he should be able to work productively, fruitfully, and is able to make contributions to his or her community, right? तो क्या कह रहा है कि अगर आपका mental health sound है तो अगर आप चाहें तो आप productive रहेंगे, okay, at the same time fruitful रहेंगे, कुछ काम कर रहे हैं तो उसका एक result आएगा, and then आपका एक contribution रहेगा society में, आपकी एक भागीदारी रहेगी, आपका एक contribution रहेगा, right? So इस sense में हम देख रहे हैं तो जो mental well-being है उसका जो general definition आ रहा है वो ये है कि नंबर वन, जो भी पर्सन है वो अपने आप को हेल्दी फील करे, शुड बी एबल टू फील हेल्दी. अपार्ट फ्रॉम दैट वो स्ट्रेसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करता हो. नाउ द पॉइंट जहां पर आप स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे वहां पर आप कहीं ना कहीं साइंस ऑफ मेंटल एलिमेंट या मेंटल हेल्थ आपका डिटोरिएट कर रहा है, ऐसा माना जा सकता है. एंड देन अल्टीमेट जो एम है एक नॉर्मल बीइंग का वो ये है कि सोसाइटी में वो प्रोडक्टिव रहता है, फ्रूटफुल रहता है और कुछ कंट्रीब्यूट करता है. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखते हुए आगे जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इसी के साथ साथ करेंगे, राइट? सो देयर आर थ्री थिंग्स, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस एंड कंट्रीब्यूशन. इन तीनों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये डिफाइनिंग है, राइट, फॉर मेंटल हेल्थ. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए. Now there are certain data. These are some data points that I am picking up. Okay. Now you will find out कि 1 in 4 suffer from mental illness. हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को mental illness, वो mental illness से कहीं ना कहीं suffer कर रहा है. Okay. 10% of total health disorders. So let's say अगर आप total health disorders को ले लें कि total death cancer से कितनी हो रही है, diabetes से कितनी हो रही है, सारे type के deaths को अगर आप मिला लें तो आप पाएंगे कि 10 लोग जो हैं
वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, उनका डेथ भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डेथ है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस सुसाइड का भी इसमें प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, ओके। और हम क्या देख रहे हैं, WHO की रिपोर्ट के हिसाब से देयर आर 800,000 सुसाइड्स पर ईयर, राइट। सो 8 लाख लोग एक साल में केवल सुसाइड कर ले रहे हैं। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, इट इज समथिंग अराउंड कि हर 4 सेकंड में एक बंदा सुसाइड कर ले रहा है, राइट। नाउ दिस इज क्वाइट ग्रूसम, ये जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, राइट। एंड देयरफॉर इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस बात को ध्यान दें कि जो भी सिचुएशंस हैं हम उस पर नजर रखें। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंटल इलनेस का अगर हम और रिपोर्ट देखें तो इंडिया में जो एट प्रेजेंट केस है वो समथिंग अराउंड 7 करोड़ हैं केवल मेंटल इलनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुसाइड, केवल मेंटल इलनेस। कितने लोग पागल हैं, ओके। और ये जो डाटा है कुछ साल पहले तक 7.25 था, उसके पहले समथिंग अराउंड 2.5 करोड़ इस डिकेड के स्टार्ट में था, ओके। सो लास्ट डिकेड के स्टार्ट में था, सो समथिंग अराउंड 2010 में 2 लाख था, वो बढ़ करके करीब करीब 7 करोड़, सॉरी 2 करोड़ था, वो बढ़ करके 7 करोड़ हो चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इंडिया में सिचुएशन देखें, नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट कितने हैं हर एक व्यक्ति पर, तो हम लोग पाएंगे कि हर 4000 व्यक्ति पर एक साइकेट्रिस्ट है, ओके। नाउ दिस इज क्वाइट ग्रूसम, जो हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है। नाउ दीज आर जस्ट टू अंडरलाइन कि जो मेंटल हेल्थ है इंडिया में उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और लेट्स से मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन अभी क्यों रिक्वायर्ड है, राइट, ओके। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। नाउ मेंटल हेल्थ समहाउ ह्यूमन राइट्स से कनेक्टेड है और एसडीजीज से भी कनेक्टेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हम लोग इसको देखते हैं, ओके। नाउ अगर हम ह्यूमन राइट्स की चर्चा करें, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, तो जो पूरा कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का वो कहां से निकल कर आ रहा है। नाउ जो आपका 18th सेंचुरी है उसमें फिलोसफर्स हैं, उनका मानना है 18th सेंचुरी में जो जनरल फिलोसफर्स हैं वो क्या सोच रख रहे हैं, वो क्या मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग धरती पर हैं, ऑल द ह्यूमंस आर बेसिकली क्रिएटेड इक्वल एंड आर इंडिपेंडेंट। तो जितने भी लोग हैं वो बराबर क्रिएटेड हैं, यानी भगवान ने सबको बराबर बनाया है, और वो इंडिपेंडेंट हैं, आजाद भी हैं, राइट। और इसीलिए ह्यूमन राइट्स का जो अगर आप देखें ह्यूमन राइट्स को हम क्लासिफाई करते हैं तो वो 2 क्लासिफिकेशन में आ जाता है। नंबर 1 आपके पास नेचुरल राइट्स होते हैं, और नेचुरल राइट्स में आपके पास सर्टेन लिबर्टी की बात चल रही है कि आपके पास आजादी है, लिबर्टी है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास लाइफ है, राइट टू लाइफ है, राइट टू परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, देन राइट टू रिलीजन है, स्पीच है, राइट टू प्रॉपर्टी है, थॉट है, कंसाइंस है, ओके। सो राइट, ये जो पूरे राइट्स जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मेड बी राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रैक्टिस सम रिलीजन, ओके, ये सारे जो है वो नेचुरल राइट्स हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन सोशल एंटाइटलमेंट्स। व्हाट आर सोशल एंटाइटलमेंट्स? सोशल एंटाइटलमेंट्स क्या है? सोशल एंटाइटलमेंट्स हैं रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट के ऊपर जो रिस्पांसिबिलिटीज आ रही हैं जो स्टेट को फुलफिल करनी चाहिए, उसको हम लोग सोशल एंटाइटलमेंट के अंडर रख रहे हैं। लेट्स से कि राइट टू एजुकेशन आपका सोशल एंटाइटलमेंट है, राइट टू फ्री मेडिकल हेल्थ केयर, ओके, या राइट टू फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, ये आपका सोशल एंटाइटलमेंट है। और इस सेंस में अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका राइट है, राइट टू मेंटल हेल्थ, ओके, उसको क्लब कर दिया गया है जनरल हेल्थ के साथ, और वो किसके अंडर आ गया? सोशल एंटाइटलमेंट। नाउ ये डिस्कशन मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो 2 टाइप्स के राइट्स हैं आपके पास, ह्यूमन राइट्स, ये 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल राइट्स और सोशल एंटाइटलमेंट्स। ये दोनों अलग अलग हैं, इनका जो नेचर है वो अलग है, ओके। व्हेन आई से इनका नेचर अलग है, तो जो आपके नेचुरल राइट्स हैं वो नेगेटिव नेचर के हैं, या वो नकारात्मक अधिकार हैं आपकी। नाउ अगर वो नेगेटिव नेचर हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। देयर इज नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू मेक सम लॉस, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इनको हम लॉस के तहत इन्फोर्स नहीं कर सकते, ओके। यानी इनको इन्फोर्स करने के लिए, इनको लागू करने के लिए लॉस को हम नहीं बना सकते, इस सेंस में ये नेगेटिव है, ओके। ऑन द सेकंड हैंड जो सोशल एंटाइटलमेंट राइट्स हैं आपकी वो पॉजिटिव है, ओके। सो लेट्स से कि राइट टू एजुकेशन पॉजिटिव है, तो आपके पास राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड सर्टेन लॉज हैं कि अगर किसी ने एडमिशंस नहीं दिए तो क्या होगा, या सरकार ने कुछ लॉज बना रखे हैं। सिमिलरली जो आपका ह्यूमन हेल्थ है, जो कि जनरल हेल्थ कंडीशंस हैं, वो अगेन एक सोशल एंटाइटलमेंट है और पॉजिटिव राइट है। नाउ चूंकि वो पॉजिटिव राइट है, गवर्नमेंट्स को कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को उनको एनफोर्स करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। नाउ एक और चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो डिक्लेरेशन था जो हेल्थ से रिलेटेड है, उसको इंडिया ने 2007 में साइन किया, राइट। नाउ 2007 में उसको साइन किया मतलब इंडिया ने उसको रेटिफाई कर दिया,
और ये मान लिया कि हम लोग ह्यूमन राइट्स को फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है हम उसको प्रोवाइड करेंगे और मेंटल हेल्थ के लिए हम कुछ करेंगे। और इसी रिलेशन में 2017 में हम लेजिस्लेशन लेकर आए, हम उसको आगे देखेंगे। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो नेचुरल राइट्स है उसके लिए लॉज बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोशल एंटाइटलमेंट्स के लिए लॉज बनाने की जरूरत है। और इंडिया चूंकि ह्यूमन राइट्स का सिग्नेटरी है, उसको रेटिफाई कर चुका है, इसलिए उसको लॉज बनाने पड़ेंगे, राइट। ये दो चीजें। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन का है उसको लाया गया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो आपका टारगेट 3.4 है और टारगेट 3.5 है, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के साथ डील करती हैं। टारगेट 3.4 जो है वो ये बोलता है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, बाय 2030 reduce 1/3 premature mortality from non-communicable diseases through prevention, treatment and to promote mental health and well-being। तो यहाँ पर एक वर्ड है to promote mental health and well-being। सो टारगेट 3.4 दो चीजों के बारे में बात कर रहा है कि जो डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के चलते हो रहे हैं। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में क्या है, जो फैलते नहीं है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते नहीं है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है। नाउ इसके लिए क्या बोल रहा है कि ऐसे डिसीजेस को कम करना है। ओके, कितना करना है, 1/3 करना है। जो अगर लेट से अभी 100 लोगों की मौत होती है ऐसे डिसीजेस से, तो उसको 1/3 करना है। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्या आता है, लेट से कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, हृदय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, आपके हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, देन मोटापा हो गया, ओके, डायबिटीज हो गया, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं। इसके साथ साथ क्या बोल रहा है, जनरल मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट करना है और वेलबींग को भी प्रमोट करना है। सो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 3.4 है, वो समहाउ मेंटल हेल्थ से रिलेट करता है। एट द सेम टाइम जो आपका दूसरा टारगेट है, टारगेट 3.5, ओके, जिसको हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो टारगेट 3.5 डील कर रहा है, और मैं इसको अगेन रीड कर रहा हूँ टारगेट 2.5 को। ये बोल रहा है कि इट रिक्वेस्ट दैट कंट्रीज, नाउ टारगेट 3.5 कंट्रीज से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, टू स्ट्रेंथन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इंक्लूडिंग नार्कोटिक ड्रग्स अब्यूज एंड हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल। नाउ ये सबको पता है कि अगर हम ड्रग्स का ज्यादा यूज करते हैं, या हम इवन अल्कोहल को अगर हम लोग अब्यूज करते हैं, ओके, सो इस सेंस में हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं मार खाती है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो अच्छा नहीं रहता है। नाउ अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, ओके, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्टिविटी है सोसाइटी में वो अच्छा नहीं रहेगा। और इसीलिए टारगेट 3.5 समहाउ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और क्या कह रहा है कि जो सोसाइटी में नार्कोटिक ड्रग्स का प्रेवलेंस है उसको कम किया जाए, उसको बिल्कुल रिड्यूस किया जाए। ओके, तो ये बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जब भी डिस्कशंस आए, तो ह्यूमन राइट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंटल हेल्थ, ओके, बिकॉज इसके बिना जितने भी आपके राइट्स हैं, अदर राइट्स हैं, वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ह्यूमन राइट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंटल हेल्थ, कि आप साउंड मेंटल हेल्थ में रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ इस मेंटल हेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए अगर आपका मेंटल हेल्थ खराब हो भी जाता है, तो भी आपके सर्टेन राइट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए। लेट्स से कि आपके पास राइट है टू रिमेन फ्री, तो आपको कोई जगड़ के नहीं रखे, आपको कोई सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं रखे, अकेला कैद नहीं कर दे, ये सारे राइट्स फिर भी रहेंगे। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। दूसरा चीज जो आपको याद रखना है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3.4 और 3.5, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। ओके, तो जब भी हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम लोग के डिस्कशन से बाहर चली जाती हैं और जिसको हम लोग यूजुअली इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, राइट। नाउ यू विल सी कि जो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, कि जो आपका सोशल अब्यूज है सोसाइटी में वो बढ़ जाता है। तो व्हेन आई से सोशल अब्यूज, ऐसे लोग जो कि मेंटली इल हैं, अगर कोई पागल है तो उसके खिलाफ वायलेंस के जो इंसिडेंसेस हैं, वो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इंसिडेंटल इंजुरी, गलती से वो इंसिडेंटली अपने आप को खुद ही इंजोर कर ले, ये भी बढ़ जाता है। फिर लेट्स से इंटेंशनल इंजुरी, कोई अपने आप को खुद से ही हार्म पहुंचा ले, कोई पागल है वो अपने आप को ही मार रहा है, अपने आप को ही काट रहा है, सुसाइड कर रहा है, ओके, तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कम्युनिकेबल डिसीजेस जो हैं उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इंक्लूडिंग HIV एड्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, HIV एड्स के चांसेस क्यों बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, ओके। अनरेगुलेटेड सेक्स में आप जो बंदा पागल है या थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो अनरेगुलेटेड सेक्स में की तरफ जा सकता है, या लेट्स से कि जो डिप्रेस्ड है वो सेक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो सकता है। मे बी वो फील करे कि अगर उसको सेक्स मिल जाए तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ओके। सो ये सारी चीजें हैं, तो वो अनरेगुलेटेड सेक्स में इन्वॉल्व हो सकता है, जहां पर वो सोचने की क्षमता खो दिया है और बस इंडल्ज्ड है, तो वो एडिक्शन में जा रहा है।
फिर इंडल्जेंस इन रिस्की बिहेवियर्स, डिप्रेस्ड है तो वो कुछ भी कर रहा है, किसी के साथ जबरदस्ती का लड़ाई कर रहा है, किसी को मार रहा है, लेट्स से ड्रग अब्यूज कर रहा है, तो नीडल्स शेयर कर रहा है, केयर ही नहीं कर रहा कि उसकी लाइफ को क्या होगा। ओके, देन चांसेस ऑफ अदर डिसीजेस मतलब अब खाने पीने का भी वो ढंग से ध्यान नहीं रख रहा है, तो जो जनरल हेल्थ है वो भी डिटोरिएट करेगी। तो चांसेस हैं कि जो उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, ये सारे क्यों हो रहे हैं? इम्प्रॉपर केयर से। टीबी हो सकता है, राइट? सो ये सारे इम्प्रॉपर केयर का रिजल्ट है जो बाकी डिजीज आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये लोग जो है वो ज्यादा रिस्क प्रोन है टू क्राइम इवन, राइट? क्योंकि घूम रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, तो या तो इनको इंटेंशनली कोई क्राइम का हिस्सा बना ले, लेट्स से कि इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो जाए, राइट? सो रेप के केसेस जो हैं इनसे रिलेटेड मिलते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनको प्रोवोक किया जा सकता है, किसी के बारे में कुछ बोल करके, गलत तरीके से प्रोवोक करके इनसे कुछ काम कराया जा सकता है, राइट? सो इट विल बी प्रोवोक्ड क्राइम। अगेन दे कैन बी फ्रेम्ड रॉन्गली। ओके, किसी केस में नहीं पता कि सुसाइड किसने किया, सॉरी मर्डर किसने किया, आपने दूसरे को जो पागल वहां पर था आसपास कहीं, आपने उसको फ्रेम कर दिया, आपने उसको रॉन्गली लेट्स से फ्रेम कर दिया और चार्जेस उसके ऊपर डाल दिए, राइट? सो आपका जो जनरल मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। ओके, और ये कई रिस्क फैक्टर्स अपने साथ साथ लेता आता है, और इसीलिए हम लोग इसके बारे में फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स, और ये जो स्लाइड है इस पर हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम डेडिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, नीड ऑफ लेजिस्लेशन की लॉज बनाने की, कानून बनाने की जरूरत क्यों है, और लिंकेज विद सोशल क्लास के साथ क्या रिलेशन है। हम लोग दो चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट? नाउ अगर हम अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने किनारे लिख रखा है, धीरे धीरे हम लोग उस पर डिस्कस करते चलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि लेजिस्लेशन की जरूरत क्या है, और अगर मैं लेजिस्लेशन बनाना चाह रहा हूँ, ओके, तो मैं कैसा लेजिस्लेशन बनाऊं, या फिर कानून की जरूरत क्या है, और हम कैसा कानून बनाना चाह रहे हैं, और कानून बनाते समय किन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए जब भी हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई लॉ बना रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, राइट? सो जब भी हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, ओके, जो कि पागल हैं, जो कि अपना बैलेंस खो चुके हैं, या फिर डिप्रेस्ड हैं, अगर वो पागल नहीं भी हैं तो वो डिप्रेस्ड हैं, लेट्स से सर्टेन मेंटल इलनेस के साइंस शो कर रहे हैं, वो अपने आप को सोसाइटी से अलग कर ले रहे हैं, या फिर सेक्लूजन में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सो सच थिंग्स जो कि मेंटल डिस्टर्बेंस के इंडिकेशंस हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड जब भी लॉस बन रहे हैं, तब हमको दो चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि मेंटल हेल्थ और जो आपका हेल्थ है, ओके, इनको हमको सेपरेट करके नहीं देखना चाहिए, ये दोनों को हम लोग को एक साथ देखना चाहिए, राइट? सो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ओके, तो वो बीमार है, अगर वो मेंटल बीमार भी है तो भी वो कहीं ना कहीं बीमार है, और अगर वो फिजिकली भी बीमार है, तो लेट्स से कि पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो भी वो बीमार है। तो जो सबसे पहला नीड है लेजिस्लेशन का या कानून बनाते समय ध्यान रखने का, वो ये है कि हमको इसको बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए, स्टिग्मा की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, राइट? सो स्टिग्मा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सोसाइटी में जनरली जो लोग पागल हैं उनको हम लोग स्टिग्मेटाइज कर चुके हैं, उनको हम लोग अलग नजरिए से देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनके प्रति ना हमारी सिंपैथी होती है, ना हमारी कोई एम्पैथी होती है, हम उनसे कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। और अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशंस आ जाएं, या फिर लेट्स से कि हम बोल दें, डॉक्टर किसी को घोषित कर दे कि ये पागल हो रहा है, तो जो जनरल सोसाइटी है वो उसको लेट्स से अच्छे से ट्रीट नहीं करती है और अलग कर देती है, या उससे बात नहीं करेगी, या सोचने लग जाएगी, जो आज भी गांव में लोग सोचने लग जाएंगे कि मैं भी पागल हो जाऊंगा, या फिर इसको समझाने की जरूरत क्या है, ओके, या इसको तो समझाया नहीं जा सकता। सो अल्टीमेटली हमारा जो बिहेवियर वो बदल जाता है। सो एट द सेम टाइम ये जरूरी है जो लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेशन को फ्रेम कर रहे हैं, वो इस बात को माइंड में रखें कि इसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, और जो भी लॉज हैं उसको ऐसा बनाएं कि एक बीमारी है, बीमारी के लिए आप लॉ बना रहे हैं, न कि एक स्टिग्मेटाइज्ड चीजों के लिए। सो नंबर वन जो आपका रोल आ रहा है लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव बॉडी से, वो ये है कि इसको स्टिग्मा से बाहर निकालें। ओके, सो आपके लॉज में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिसको स्टिग्मेटाइज नहीं करें। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं उसको जस्टिस की तरह कंपेयर किया जा सकता है। जैसे जस्टिस में हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, नाउ रूल ऑफ लॉ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक्चुअल में क्या होता है हम इसको जान नहीं पाते हैं, या फिर बहुत कम ही लोग हैं जो इसको समझ पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज है। सिमिलरली जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, और इसीलिए इसको जब डिफाइन कर रहे हैं तब हमको कुछ चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी। नंबर वन कि हमारा जो नेशन है वो कैसा है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, यहाँ के लोग कैसे हैं, सोशल कल्चर कैसा है, और हम
लेट्स से कि अगर लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है, सेक्लूड किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, जो कि जनरली सोसाइटी में होता है, अगर कोई पागल है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको सेक्लूड कर देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, हम उसको अकेला कर ही देते हैं, और कहीं ना कहीं जो रेगुलर एसेंशियल नीड्स हैं वो उनसे भी वंचित हो जाता है। तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सोसाइटी के वो किस लेवल पे आता है। लेट्स से कि आप ऐसे लोगों को कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्या उनका कोई केयर करने वाला है? तो यहाँ पर फिर हम दो चीजों के साथ आएंगे, क्योंकि सोशल क्लास जो है, ओके, कि आप किस क्लास में बिलोंग करते हैं, कि जो पागल है वो किस फैमिली से रिलेशन रखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ लेट्स से कि अगर कोई पागल ऐसा है जो कि किसी रिच फैमिली में है, तो ऑफ कोर्स उसके आसपास लोग होंगे जो उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए सर्टेन प्रोविजंस होंगे, वो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उनको दवा दी जाएगी एंड ऑल। लेकिन एट द सेम टाइम कोई पागल ऐसा है जो कि पुअर फैमिली से, बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वही इसको नेग्लेक्ट कर देंगे फॉर सर्टेन रीजंस। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करेंगे, बट ड्यू टू सर्टेन लेट्स से एजुकेशन का लेवल कम है, वो उस बीमारी को कम समझते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसको फिर फाइनेंशियल बर्डन समझने लग जाएंगे, और अपना जो ऑब्लिगेशन है उस व्यक्ति के प्रति वो कम कर लेंगे, राइट? सो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है कि सोशल क्लास का भी हमको इसमें ध्यान रखना है। और इसीलिए जब हम लेजिस्लेशन फ्रेम करेंगे तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो सोशल क्लास है, जैसे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन में है, या फिर जो लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनके लिए सर्टेन अदर प्रोविजंस होंगे, और जो लोग लेट्स से अपर क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए सर्टेन अदर प्रोविजंस होंगे, राइट? तो इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या चीजें हैं, जब भी हम लॉज फ्रेम कर रहे हैं तो हमको कुछ और देखना पड़ेगा, वो ये है कि जो सोशल इनइक्विटी और सोशल इनइक्वालिटी है, जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, वो दूर किया जा सके। सोशल इनइक्विटी क्या है? सोशल इनइक्विटी डील करता है केसेस रिलेटेड टू जस्टिस एंड फेयरनेस, कि ऐसे जो लोग हैं उनके साथ जस्टिस हो पा रहा है कि नहीं, उनको फेयर डील मिल पा रहा है कि नहीं, फेयर शेयर मिल पा रहा है कि नहीं। एंड एट द सेम टाइम जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको जब हम खत्म करने की बात करते हैं, तब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे कि चाहे वो मेंटली डिस्टर्ब हो या मेंटली स्टेबल हो, उसको रिसोर्सेज कहीं ना कहीं जो एसेंशियल रिसोर्सेज हैं वो उसको एट द सेम मतलब करीब करीब बराबर मिलना चाहिए, राइट? सो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास और ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पर्सन्स मेंटल स्टेट कि उसको क्या मिले। ओके, सो देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये दो चीजें हमको यहाँ ध्यान रखनी। अपार्ट फ्रॉम दिस, चार चीजें और हैं इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। identifiable and legally binding obligations. Now identifiable and legally binding obligations का मतलब क्या है कि हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी चीजें हैं जो लॉ में होनी चाहिए, और उसके बाद उसको लीगली बाइंड कराने के लिए, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए सर्टेन अदर रूल्स बनाए, राइट? सो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला है आपका डिग्निटी से रिलेटेड, यानी जो पर्सन है उसकी डिग्निटी मेंटेन्ड हो। ओके, सेकंड इज इक्विटी, इक्विटी के बारे में हम लोग चर्चा किए। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन, कि वो सोसाइटी में अपना पार्टिसिपेशन दे पाए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट आपका जस्टिस एंड फेयरनेस, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, राइट? और नाउ जस्टिस एंड फेयरनेस की जब बात आती है तब तीन चीजें हम लोग को सोचना पड़ जाता है कि उसके साथ सिविल जस्टिस कैसा हो रहा है, सोसाइटी में जनरल बिहेवियर उसके साथ कैसा हो रहा है, देन लेट्स से सोशल जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो कैसा है। नाउ सिविल जब मैं बोला तो उसके कुछ राइट्स है, सिविल राइट्स वो उसको मिल रहे हैं कि नहीं, ओके, सोशल राइट्स उसको मिल रहे हैं कि नहीं, पॉलिटिकल राइट्स उसको मिल रहे हैं कि नहीं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक राइट्स उसको मिल रहे हैं कि नहीं। ओके, just 1 second. ओके, सो इकोनॉमिक राइट्स उसको मिल पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, नाउ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हमने बात किया, सो क्या उसको सारे राइट्स मिल पा रहे हैं? तो आप देखेंगे कि जो थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब्ड है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो अपना पॉलिटिकल राइट खो चुका है। अब यूजुअली वो वोट करने नहीं जा रहा है, तो उसके कुछ पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। एट द सेम टाइम उसके कुछ सिविल राइट्स भी कुछ खास नहीं बचते हैं, क्योंकि वो साउंड स्टेट में नहीं है अपने सिविल राइट्स को क्लेम करने का और मांगने का, तो वो साउंड स्टेट में नहीं है। और सिमिलरली जो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो उसको भी खो चुका है, क्योंकि वो अब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो इंडल्ज नहीं, वो प्रोडक्टिव नहीं रहा। ओके, नाउ अगर ऐसे सिचुएशंस हैं तो फिर कौन है जो उसको इंश्योर करे कि उसको ये सारी राइट्स मिल पाए? तो यहाँ पर सोसाइटी का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाता है, और कहीं ना कहीं रूल बनाते समय हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं एम्पावरिंग हो, ऐसे लोगों को वो ज्यादा पावर दें और कहीं ना कहीं उनको प्रमोट करें। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मेंटल हेल्थ केयर सेटअप है वो प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेल्थ केयर और टर्शियरी लेवल का हेल्थ केयर में डिवाइडेड है। ओके,
नाउ ये चीजें आपको पता है, ओके, या नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए, जो प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर है वो ब्लॉक लेवल पर या प्राइमरी इंटरवेंशन की तरह बनाया गया है। सो इसके लिए जो आपका एक्ट है, ओके, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, उसमें ये प्रावधान किए गए हैं। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो हम पहले एक्ट पर आ जाएं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाउ 1987 तक या 1987 से 2017 तक हमारा जो एक्ट था वो था मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। 2017 में इसको अमेंड किया गया, इसको चेंज किया गया, और अब हमारे पास है नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ओके, सो की जो फीचर्स हैं आपके, क्या क्या बातें इस एक्ट में की गई, हम लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। नंबर 1, राइट टू मेंटल केयर एंड ट्रीटमेंट। ओके, तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं राइट टू मेंटल केयर एंड ट्रीटमेंट, सो राइट टू मेंटल केयर और ट्रीटमेंट में जो पहला पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि फ्री ट्रीटमेंट ऑफ सच पर्संस। अब वो जो लोग हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट होगा। ओके, अगर वो होमलेस हैं तो भी, ओके, होमलेस नहीं है तो भी, पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं तो भी, राइट। सो अगर आपके उनके पास बीपीएल कार्ड है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो मेंटली इल है तो उसका ट्रीटमेंट फ्री होगा। ओके, ये प्रोविजन किसने बनाया है? ये एक्ट में। ओके, सो 2017 का हमारा एक्ट है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ओके, सेकंड जो आपको यहाँ पर दिखेगा वो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। नाउ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड सर्टेन रूल्स हैं। ओके, डिग्निटी मींस कि उसकी कुछ डिग्निटी है। ओके, डिग्निटी है मतलब आप उसको एक डिग्निफाइड आदमी की तरह ही ट्रीट करेंगे, आप उसको ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे कि उसकी डिग्निटी नहीं है या वो पागल है, तो हम पागल को पागल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, जो कि जनरली हमारी सोसाइटी में होता आता है। हम उसको नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, उसको डिग्निटी के साथ ट्रीट करेंगे। ना जैसे ही डिग्निटी के साथ ट्रीट करने की बात आई, यहाँ मैंने आगे लिख रखा है, दो चीजें यहाँ मेंशन्ड है। ये सारी चीजें जो नीचे देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, देन स्टेरिलाइजेशन चेंज, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं डिग्निटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, डिग्निटी के साथ डील करती है, राइट। सो डिग्निटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं हम? नंबर 1 जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप उसको नोट भी कर लें। सो डिग्निटी मेंटेन करने के प्रोसीजर्स क्या है कि इनसे रिलेटेड जो भी डाटा है डॉक्टर्स के पास या जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनके पास, वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, वो उनको लीक नहीं करेंगे, वो जनरल पब्लिक में नहीं बताएंगे। अगर प्रेस को कुछ ऐसा डाटा पब्लिश करना है तो वो इनके परमिशन के साथ ही कर सकता है। सो जो मेंटली इल है उसके परमिशन के साथ ही किया जा सकता है, और जिसके चांसेस बहुत से रिमोट हैं, जो कि यूजुअल ही नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पागल है तो उससे रिलेटेड वो कभी कंसेंट दे ही नहीं पाएगा, ओके, कि आप हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश कर लीजिए। तो समहाउ प्रेस में ऐसी बातें आने से पर रोक है। ओके, सो आप ऐसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, इन पर्टिकुलर पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो प्रेस में नहीं आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी अगर हम लोग देखें, सो इनसे रिलेटेड फोटोज को आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ओके, जब डिग्निटी की बात आ रही है तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है, जो जिसमें हम लोग जिसको यूजुअली शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं, तो शॉक ट्रीटमेंट देते समय दो रूल्स हैं जो आप एप्लीकेबल होंगे कि जब भी आप किसी को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे तो वो माइनर नहीं होना चाहिए, पहले वो 18+ होना चाहिए मिनिमम। नंबर 2, मसल रिलैक्सेंट का यूज किया ही जाना चाहिए। ओके, सो मसल रिलैक्सेंट इज कि वो मसल रिलैक्सेंट एंड एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मतलब उसको दर्द का महसूस नहीं होगा, और मसल रिलैक्सेंट में उसका जो हाथ पैर वो अकड़ेगा नहीं। ओके, सो मसल रिलैक्सेंट एंड एनेस्थीसिया ये दोनों का यूज होना ही चाहिए, उसके बाद ही इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जा सकती है, और ये माइनर्स को नहीं दी जा सकती है। ऑन स्टेरिलाइजेशन, तो पहले क्या कर रहे थे कि जो पागल थे उसको हम स्टेरिलाइज कर देते थे, नसबंदी कर देते थे उसका, अब उस पर बैन है, अब ऐसा नहीं किया जा सकता है, उसके कंसेंट के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। नाउ नॉट टू बी चेन्ड, आप इनको चेन में जकड़ के नहीं रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ये जनरल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका पूरा एक्ट है, इसने दो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। नंबर 1, एक जो राइट है आपका, जो कि मेंटल केयर है, उसको इसने राइट का दर्जा दे दिया, और राइट का दर्जा दे दिया मतलब आपके पास अधिकार है कि आप मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर पाए। नंबर 2, इसने ऐसे लोगों को की डिग्निटी को एक्सेप्ट किया और उनकी राइट टू लाइफ को भी एक्सेप्ट किया। उसने बोला कि ऐसे लोगों का लाइफ है और लाइफ विद डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए सर्टेन प्रोविजंस बनाए। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दिस इसी के तहत सुसाइड भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, राइट। सो जो सुसाइड है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि क्या किया गया एक्चुअली में। ओके, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले
ओके, जो आपका सुसाइड था वो सेक्शन 309 आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 309 में वो क्रिमिनल एक्टिविटी थी। अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन प्रोविजंस कब उसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जा सकता है, हम लोग उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो ये जनरल प्रोविजंस हैं। इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज या स्टेप लिए गए। नंबर वन इज मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया। नाउ ये जो आपका मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है, ये दो लेवल पर एस्टैब्लिश होगा। नंबर वन इज स्टेट लेवल एंड नेक्स्ट इज नेशनल लेवल। सो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया। मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का काम ये रहेगा कि वो इंश्योर करे कि जो वहां के लोग हैं या वहां जो पागल खाना है जो बने हुए हैं, जो कि असाइलम्स बने हुए हैं, वहां पर जो पेशेंट्स हैं उनको राइट्स के साथ डिग्निफाइड तरीके के साथ ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं। सो उनके राइट्स को इंश्योर करे, इनका पहला काम है। दूसरा काम है कि ये अपना एक सर्वे जारी करे कि इंडिया में जो मेंटल हेल्थ है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है या फिर अभी वो किस लेवल पे चल रहा है, और उससे रिलेटेड डाटा जो है उसको मेंटेन करे, उसको पब्लिश करे। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके पास एक और इम्पोर्टेंट काम है कि वो कुछ दिनों में जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कि आपके प्रिस्क्रिप्शंस हैं ट्रीटमेंट से लेकर के एंड हैंडलिंग, सो ऐसे लोगों का जो केयर है, जो ट्रीटमेंट है, ओके, इसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है कि कैसे किया जाए उसको ये डिसाइड करे, और उसको डिसाइड करने के बाद उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करे। सो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, जो कि समहाउ एक ओवरव्यू रखा हुआ है किसके ऊपर, जो आपके स्टेट में नेशनल लेवल पर जो भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज हैं। फिर यार इसके बाद है मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड। सो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड कुछ नहीं है, मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर है, जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड रिव्यूज कर रही है, प्रिस्क्रिप्शंस को कर रही है, मेंटल हेल्थ के डेफिनेशंस को चेंज कर सकती है, सुसाइड से रिलेटेड इंटरवेंशंस हैं उसके लिए कदम उठा सकती है। सो बेसिकली ये रिव्यू कर रहा है जो प्रैक्टिसेस हैं आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिसेस, इसको ये रिव्यू कर रहा है। राइट नाउ अगर ये इसको रिव्यू कर रहा है तो एक और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये कुछ दिनों में अपने रिपोर्ट्स को सबमिट करेगा। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस तो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड ये दोनों मिल करके अपना पब्लिकेशन लाएंगे ऑफ द डाटा एंड एवरीथिंग। सो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड दोनों इंपॉर्टेंट हो गए इस सेंस में। राइट नाउ हमको ये चीज जानना थोड़ा जरूरी है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके राइट, सो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड क्या कर रहा है, राइट्स, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर, प्रिस्क्रिप्शन, इस पर ध्यान दे रहा है। ओके नाउ सुसाइड का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ओके सो सुसाइड का इम्पैक्ट थ्रू आउट द ग्लोब अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव पॉपुलेशन है वो लोग अपनी जान ले रहे हैं, उनका जो उनमें जो डेथ रेट है वो काफी बढ़ा हुआ है, स्पेशली इन यूथ। राइट, सो आई विल अर्ज यू पीपल कि आप लोग इससे रिलेटेड जो वीडियोस आपको मिलें। ओके सो मुझे एक वीडियो मिली थी जिसका नाम है मैं आपको बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट जनरेशन बैटलिंग अबोरिजिनल सुसाइड। ये अल जजीरा का स्ट्रीम है, अल जजीरा के एक प्रोग्राम है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई विल अर्ज यू पीपल कि आप लोग उसको एक बार देखें। राइट, सो ऑस्ट्रेलिया में, केवल मैं ऑस्ट्रेलिया का डाटा बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया के लिए ऐसे डाटा अवेलेबल नहीं है। ओके सो ऑस्ट्रेलिया में जो सुसाइड है केवल उसके चलते ऑस्ट्रेलिया हर दिन $500 का लॉस कर रहा है। राइट, सो कहीं ना कहीं सुसाइड का जो इम्पैक्ट है वो सोशल लाइफ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि या इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो आपका प्रोडक्टिव था व्यक्ति उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। ओके अगर किसी ने सुसाइड किया तो उसका जो कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी में, उसका जो कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी में, वो खत्म हो गई। ओके सो उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। राइट, इन जनरल अपार्ट फ्रॉम दिस जो गवर्नमेंट है उसको भी अपना मेंटल हेल्थ जो है उसको सही रखना चाहिए। रीजंस क्या है इसके लिए, क्यों, इसका बेनिफिट क्या है कि अगर लोगों का या जनरल पॉपुलेशन का मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो जो उनका इकोनॉमिक लेट्स से आउटपुट है वो ज्यादा होगा। राइट, और इकोनॉमिक आउटपुट कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ रिसेंटली माइकल ब्लूमबर्ग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो मुंबई आए हुए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और मैं उसको यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। इफ हेल्पिंग पीपल टू लिव लॉन्गर happier life is not the purpose of government, then I don't know what is. Right now सुसाइड, मेंटल हेल्थ, ये सब की बात चल रही है और कहीं ना कहीं इन सब के पीछे एक जो जनरल डेफिनेशन आता है या जो जनरल कॉज हम लोग देखते हैं कि लोग अनहैप्पी फील कर रहे हैं। लेट्स से कि वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है,
वो सोशली डिप्राइव्ड है, और लेट्स से कि वो जनरल डिप्रिवेशन में है। जनरल डिप्रिवेशन मतलब न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी हो सकती है। लेट्स से कि अगर आप में विटामिन D3 की कमी है तो सिजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके, तो न्यूट्रिशन की कमी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट हो सकती है, कॉज हो सकती है मेंटल इलनेस के लिए। अगेन जो जनरल डिप्रेशन है, जनरल स्ट्रेस है, वो एक कॉज हो सकता है किसके लिए, जनरल मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो माइकल ब्लूमबर्ग है वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट का काम लोगों को खुश रखना नहीं है तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट का असल काम क्या है। सो इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का प्राइमरी मोटिव है वो ये है कि लोगों को खुश रखे। नाउ लोगों को खुश रखना अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ बेटर होगा, मेंटल हेल्थ बेटर होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। जस्ट दिस इज जस्ट टू कोट, राइट। और हम क्या देख रहे हैं कि सुसाइड और मेंटल हेल्थ के जो लेट्स से इंसिडेंसेस है वो ज्यादा है, और जो दो प्राइमरी कॉज जो हमारे सामने है वो है एक सब्सटेंस अब्यूज। ओके, सो जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें सब्सटेंस अब्यूज बहुत ज्यादा है। अब प्रेजेंट जनरेशन जो वो पिछली जनरेशन से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, पिछले जनरेशन से ज्यादा ड्रग्स का अब्यूज कर रही है, और इस अब्यूज के चलते इस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और समहाउ वो जो अपना मेंटल स्टेबिलिटी है वो खो देते हैं। रीजन ये है कि आपका जो बॉडी है वो केमिकल्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, और केमिकल जब नहीं मिलने लगता है तो फिर जो आपका टॉलरेंस लेवल है वो तो बढ़ ही चुका है। ओके, तो कम में भी आपका काम नहीं चलता है, और कहीं ना कहीं आप उस पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जब वो आपको नहीं मिलता है देन यू फील लाइक कि अब सोसाइटी मतलब दुनिया खत्म हो गई है। तो सोसाइटी suddenly I will ask you people to keep yourself public private partnership. Let's take a राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एक और चीज थी, ओके, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या है कि आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं ना। जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं तो उसका जो जनरल आउटपुट है वो ये है कि जो हम हैं वो अपनी जनरेशन से, जनरेशन गैप है मतलब बाप बेटे में अच्छे से टॉक्स नहीं हो रहे हैं, डिस्टेंसेस ज्यादा हैं, लोग एक दूसरे से मिल ले रहे हैं, और समहाउ शेयरिंग कम है। ओके, तो समहाउ these things can result into resentment, आप में resentment बढ़ सकती है, and those things, right? Now how to mitigate, कैसे इसको कम किया जा सकता है? How to mitigate का बहुत ही जनरल सॉल्यूशन है कि सब्सटेंस अब्यूज को कम किया जाए। सोसाइटी में हम सब्सटेंस अब्यूज को प्रमोट कर रहे हैं बाय मींस ऑफ सिनेमा, बाय मींस ऑफ नोवेल्स, बाय मींस ऑफ जनरल लाइफस्टाइल। अगर बच्चा बड़े को करता हुआ देखेगा तो वो फॉलो करेगा, या अगर हम उसको पिक्चर्स में ऐसा दिखाएंगे कि हैविंग अल्कोहल इज अ वे टू एंजॉय, ओके, तो जहां जहां एंजॉयमेंट की बात आ रही है वहां अल्कोहल दिखला रहे हैं हम, वहां ड्रग्स दिखला रहे हैं हम। So people will think कि alcohol and these things are means of recreation and they will tend to move in that way. So जो portrayal है सोसाइटी में हम उसको किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं उस पर भी एक टैप रखने की जरूरत है। Okay, apart from this there are other things. Let's say कि इंडिया में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत कम है, साइकेट्रिस्ट 4000 पर वन है, हर 4000 लोगों पर 4000 लोगों पर एक साइकेट्रिस्ट है। एट द सेम टाइम साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इनसे भी ज्यादा रेयर है। अपार्ट फ्रॉम दिस साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको जनरल अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी, आपको किसी सरकारी अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलने वाला है। साइकोलॉजिस्ट का एक सेशन कैन वेरी फ्रॉम 1500 टू 3000 टू 4000, तो एक घंटे साइकोलॉजिस्ट के साथ जो आपका लेट्स से टाइम है उसकी कॉस्ट आ रही है 1500 टू 3000 टू 4000 नो, जो कि बहुत ज्यादा है। तो समहाउ गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट को भी प्रमोट कर पाए, ताकि अगर लोग जनरेशनल गैप में हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो समहाउ उनके पास जो एसेस साइकोलॉजिस्ट को लेकर के वो थोड़ा इजी रहे और थोड़ा इकोनॉमिक रहे, ताकि जैसे ही किसी को प्रॉब्लम आती है वो इसलिए चला जा पाए वहां। ऑल्दो इन पेपर ये लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ओके, सो अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ एक्ट में जो पहला आपका कंसर्न है वो यही है, राइट टू एसेस मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट। ओके, और ये फ्री मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट की बात चल रही है, लेकिन जो आपके प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं उसमें या तो डॉक्टर्स नहीं है, या जो डॉक्टर्स हैं वो साइकियाट्रिस्ट हैं प्राइमरीली, जो कि 2 मिनट व्यक्ति को देखते हैं और प्रेस्क्रिप्शन लिख करके अपनी छुट्टी कर लेते हैं। उनके पास भी रेस्ट्रेंट्स हैं, 10 लोग अगर मिलने आए हुए एक शिफ्ट में तो वो सबको एक एक 2-2 घंटा नहीं दे सकते हैं, दे कैन नॉट जस्ट सिट एंड लिसन। तो जरूरत है कि हम कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम साइकियाट्री साइकोलॉजी को भी प्रमोट करें और साइकोलॉजिस्ट को भी लेट्स से प्रमोट करें, ये जरूरत है और उसका ये ज्यादा जरूरी है।
अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या जरूरी है कि हम लोग जो जनरेशनल गैप है, हम लोग का जो पूरा डिपेंडेंस है डिजिटल मीडिया पर, इसको थोड़ा कम किया जाए और एक सोशल इंटरेक्शन का जो दौर था उसको वापस से रिवाइव किया जाए। ओके, ये थोड़ा जरूरी है। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्टिग्मेटाइजेशन है सोसाइटी में, जो अवेलेबल स्टिग्मेटाइजेशन है, उसको कम किया जाए। स्टिग्मेटाइजेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमको पता चलता है कि किसी कोई मेंटली इल है तो हम लोग उससे दूर हो जाते हैं, हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और जो कम्युनिटी है वो लेट्स से वो उसको लेकर के सेंसिटिव नहीं है। ओके, सो फ्यूचर स्कोप क्या है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? नंबर वन, हमने क्या देखा कि हमारे पास जो हेल्थ केयर रिसोर्सेस हैं, ओके, या जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो कम है। तो फ्यूचर में हमको डॉक्टर्स यानी साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को इंक्रीज करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंटरवेंशंस हैं कि किस तरीके से क्या दवा दिया जाए, ओके, क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर यूज किया जाए, इन पर रिसर्च करने की जरूरत है। सो इन शॉर्ट फाइनेंसेस की भी जरूरत है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू, ज्यादा फाइनेंसेस, गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा स्पेंडिंग ऑन क्रिएटिंग सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सो अगर आप देखेंगे तो जो पागल खाने हैं, जो स्टेट है, या फिर कह सकते हैं कि हर एक शहर में छोटा पागल खाना भी नहीं है, या फिर वो दूर है, या फिर वहाँ जो फैसिलिटीज है वो अच्छे नहीं है, तो समहाउ जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक्चुअली बहुत कॉस्टली नहीं है। लेट्स से कि आपको हार्ट की सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट मशीन्स चाहिए, आपको ब्रेन सर्जरी के लिए ईईजी मशीन्स चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कॉस्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, और जो नर्चरिंग कॉस्ट है वो है, यानी केयर करने वाले जो लोग हैं उनकी जरूरत है। ओके, सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, और जो कॉस्ट है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स उनको प्रमोट करने की जरूरत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि जो कम्युनिटी अवेयरनेस है, जो हम लोग जनरल लोग जो हैं वो किस तरीके से मेंटल इलनेस को देखते हैं, हम लोग लेट्स से डिप्रेशन को कैसा देखते हैं, क्या हम डिप्रेशन को मजाक में लेते हैं? ओके, क्योंकि यूजुअली हमारे साथ यही होता है, कोई अगर डिप्रेस, हम बोलते हैं चलो घूम कर आते हैं, वी डू नॉट सिट एंड लिसन, या फिर हम उसको डांट देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ओके, तू ज्यादा सोच रहा है। ओके, सो ऐसा जो होती है हमको वो मानना पड़ेगा, और हमको उसके प्रति सेंसिटाइज होना पड़ेगा, हमको उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा सोसाइटी। ओके, सो एज सोसाइटी वी नीड टू बी केयरिंग। सो विद दिस जो हमारा डिस्कशन है वो खत्म हो चुका है। ओके, एंड आई विल अर्ज यू पीपल कि आप लोग जाते ही पढ़ लें। एक चीज जो मैंने डिस्कस नहीं की वो है आपका सेक्शन 309 आईपीसी। मैं उसको यहाँ पर पिक कर ले रहा हूँ। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्या कह रहा है, ये अभी भी लॉज में है। इसको जो आपका हमने देखा कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो है, ओके, सो वो क्या बोल रहा है कि जो सोसाइटी वो डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, यानी अब वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, अब वो कानूनी अपराध नहीं है। ओके, लेकिन अभी भी जो सेक्शन 309 आईपीसी है जो कि क्रिमिनलाइज करता है सोसाइटी को, वो अभी भी आपके लॉज में है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ लेकिन जो आपका नियम है जो कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, वो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको अवेलेबल फैसिलिटीज दिलाया जाए, ना कि उसको क्रिमिनल समझा जाए। और सेक्शन 309 जो है आपका आईपीसी का, उसमें प्रावधान क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता हुआ पकड़ा गया, ओके, तो उसको 1 साल की सजा या फाइन या दोनों, ये प्रावधान है उसमें। ओके, और ये जो एक्ट है वो बोल रहा है कि जनरल केसेस में ऐसा नहीं किया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, अगर कोई व्यक्ति मेंटली इल है तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति इंटेंशनली कर रहा है, वो डिप्रेशन में भी नहीं है, आपको कहीं साइंस नहीं देख रहे हैं डिप्रेशन के, ओके, और किसी भी तरीके से ये प्रूव ही नहीं होता है कि वो डिप्रेशन में है, ओके, बस वो कर लिया, किसी को धमकी देने के लिए कर लिया, ओके, या किसी को धमकी देने के लिए उसने यूज करने की कोशिश की, उस केस में वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी। ओके, नाउ 2008 में जो लॉ कमीशन है उसने अपने 20th रिपोर्ट में, 20वां जो उसका रिपोर्ट था, उसमें इन्होंने कहा था, यानी लॉ कमीशन ने कहा था कि जो सुसाइड है और जो सुसाइड के केसेस हैं उसको मेडिकल और साइकियाट्रिक केस माना जाए और पनिशमेंट इसमें नहीं दिया जाए। सो ये एक इशू है यहाँ पर। ओके, मैं थोड़ी देर में क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, एंड देन 2011 में हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एक रूलिंग आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से लेट्स से कि पार्लियामेंट को रिकमेंड किया था कि आप जो सुसाइड है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दें, या इस पर्टिकुलर सेक्शन को, सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी को डिलीट कर दें। सो पार्लियामेंट ने इसको डिलीट तो नहीं किया, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकमेंड किया था, डिलीट तो नहीं किया, लेकिन मेंटल हेल्थ जो आपका एक्ट है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट,
इसमें प्रावधान बना दिया गया कि इसको हम ट्रीट करेंगे कि वो मेंटल इलनेस है, बशर्ते सुसाइड का यूज या सुसाइड को मिसयूज नहीं किया जाए टू किसी को डराने के लिए या किसी से कुछ काम करवाने के लिए। ओके, सो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, राइट। सो ये फ्यूचर स्कोप है। विद दिस हमारा ये स्लाइड खत्म हुआ। ओके, नाउ आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट? सो आई विल जस्ट स्टॉप दिस शेयर। ओके, या क्या क्वेश्चंस हैं सर? सबका नेम पूछ लेंगे। ओके फाइन, वन मोर थिंग, आई विल जस्ट आस्क यू पीपल कि आप लोग अपना जो नाम है वो मुझे बता दें। सो वी हैव परी एटेड तमिल, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम? जो भी लोग हैं वो प्लीज अपना नाम मुझे बता दें। वी हैव परी। परी, आई एम नॉट गेटिंग योर नेम। आपका जो नाम है वो ईमेल आईडी से सेव है, सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि चैट में आप वो नाम लिख के मुझे Sir, good evening, sir. This is Manoj Moses Pari from Chennai. या Manoj Moses Pari from Chennai. मनोज। Manoj Moses. Okay, fine. Very nice, sir. You have done a marvelous webinar session on this mental health care and their legislation. It helps me to understand what is it. Okay, thank you, Manoj, for the review. Okay, thanks for that. Okay, again tomorrow we'll be meeting at the same time, so we'll be starting at 7. Okay, and Okay, then very we'll be, nice. हम लोग एक दूसरा कोई टॉपिक पिक करेंगे और फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे, राइट? सो सी यू पीपल sir, अगेन right, at 7 tomorrow. Okay, very nice to have it tomorrow on another topic. Thank you, sir. Thank you all. Thanks everyone. Thank you, sir. Thanks you all. everyone. कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो. If you have people have some question, please ask that. Okay, sure, sir. Any questions? Right now, I don't have any question. If I have, will intimate tomorrow, sir. Right, not an issue. Fine. Thank you. Okay. Have a nice day. And this will be available. This complete recording will be available on YouTube. So Okay. if you people need to rewatch it or wish to recommend it to certain other people or your friends. I already watched YouTube session sites. Was very nice. Okay, thanks Manoj. Okay, so in case you further wish to have a look, आपको YouTube पे वो मिल जाएगा और अपने friends के साथ share करें to those people जिनको जरूरत हो, right? Yeah, sure. Sure. We'll share it to our friends. Okay. Thank you everyone. Okay, See you tomorrow in the evening. Right? Take care. Bye bye. Okay, take care.